السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کی ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج 30 اگست 2024 بروز جمعہ اسلامک دعویٰ سینٹر نسیم کی طرف سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، ہم مشکور ہیں مکتب جالیات نسیم کے اور وہاں کے داعی، خاص طور سے فضیلت الشیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ آفتاب عالم صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر تمام ذمہ داران جنہوں نے بڑی کوشش کے بعد یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل کر دعوت کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ جس طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جس سے ہمیں نقصان ہو یا نفع ہو، لیکن کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انسان کو بھی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی بھی بہت مختصر زندگی ہوتی ہے۔ جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال بھی کرے گا، اس کا حساب و کتاب کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہمارا اور آپ کا معاملہ طے ہوگا۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن اس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور وہ اس دن کے قریب ہوتا جاتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حساب و کتاب دینا ہے. یعنی یہ کہ ایک انسان جیسے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے وقت کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس کا ہر دن حساب و کتاب کے دن سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ کہ انسان میدان محشر میں کیا تیاری کر کے جا رہا ہے, کس طرح سے تیاری کر کے جا رہا ہے, اس کو انہی ایام میں انہی زندگیوں میں اس کو اپنا فیصلہ کر لینا ہے. اور اگر اس نے صحیح طور پر فیصلہ کر لیا, صحیح طور پر عمل کر لیا, تو وہ دن جو حساب کا دن ہوگا, وہ دن جس دن فیصلہ ہو جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا. اگر اس نے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا لیا تو سمجھ لیجئے فیصلے کا دن اس کے لیے کامیاب ہوگا. لیکن اگر اس نے اس مختصر سی زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اس پر غور و فکر نہیں کیا ہے, اس کی تیاری نہیں کیا ہے, حساب کے دن آنے کے لیے اس نے اپنے ذہن میں سوچا ہی نہیں کہ حساب کا دن بھی آئے گا, ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے, تو ایسے شخص کے لیے ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہے. محترم حضرات و خواتین, ہم روزانہ دیکھتے ہیں, ہر روز دیکھتے ہیں, ہر ایک کے قریبی میں سے, رشتہ داروں میں سے, اقربا میں سے, گاؤں والوں میں سے, مدینہ والوں میں سے, شہر والوں میں سے ہر دن کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے, جس کو چند لوگ اٹھا کر اور قبرستان پہنچا دیتے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا, 20 سال اس کی عمر ملی, 60 سال ملی, 70 سال عمر ملی, اور یہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج یہ جا رہا ہے, کل ہمیں بھی جانا ہے, اور جانے کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اب ہم حساب کے دن کی کامیابی کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اتنی سی بات سوچنے کی ہے, اس پر غور و فکر کرنا ہے. محترم حضرات و خواتین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراحت کے ساتھ, اقترب للناس حسابهم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن, وہ دن جس دن یا تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, وہ دن قریب آ گیا ہے. لیکن وہم فی غفلت معرضون, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب تک وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں, دین اسلام سے بالکل غفلت میں ہیں, کوئی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں, ہمیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو ہم یہ گانٹھ لگا لیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہر حالت میں مرنا ہے, موت سے چھٹکارا نہیں ہے. اور یہ بھی گانٹھ لگا لیجئے کہ چاہے وہ مسلم ہو, مومن ہو, کافر ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی ہو, جس طرح سے اس کا ایمان ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے, اسی طرح سے اس کا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو مرا ہے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اس سے حساب و کتاب لے گا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک مسلمان ہیں, ہم ایک مومن ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ مارے گا, دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ہم سے حساب و کتاب لے گا, تو یہ حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ کیسا یہ انٹرویو ہوگا؟ کیا ایئر کنڈیشن روم میں ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں یہ پروگرام جو چل رہا ہے ظہر کے بعد, جمعہ کے بعد سے نہیں منعقد کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے بعد دھوپ تھی, گرمی کی شدت تھی, انتظار کیا گیا کہ جب اس گرمی کی شدت ختم ہو جائے اس کے بعد ہم پروگرام چلائیں گے اور لوگ آئیں گے. اور آپ بھی اگر جمعہ کے بعد آپ کو بلایا جاتا تو آپ نہیں آتے. یہ ہماری خواتین جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں یہ نہیں آتی.
क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी में कौन जाएगा? मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यहां पर बात यह है कि हिसाब का दिन करीब आ गया है, हिसाब का वक्त करीब आ गया है। यह हिसाब किस एयर कंडीशन रूम में होगा, किस एयर कंडीशन हॉल में होगा? कहां पर आप जाएंगे? जहां पर आपका हिसाब होगा, और वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, ज्यादा ठंडी नहीं होगी, मुतदिल हवा होगी, मुतवस्सित हवा होगी, मुतवस्सित मौसम होगा। कौन सा हाल होगा, कौन सा रूम होगा, किसके सामने जाना होगा? मोहतरम हजरात व ख्वातीन, मैं कहना बतलाना यह चाहता हूं कि मैदान महशर में आपको जमा होना होगा। वहां की गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि इंसान उसको बयान नहीं कर सकता। आज सूरज की ऊंचाई इतने मीलों पर है, और उसके बाद जगह जगह पर आपको दरख्त, सायेदार दरख्त मिलते हैं, छतें मिलती हैं, और कुछ नहीं तो ये पानी मौजूद है अंदर की गर्मी मिटाने के लिए। तब हमारी ये हालत है कि हम 12 बजे 2 बजे प्रोग्राम में भी नहीं आ सकते। लेकिन उस वक्त का हाल क्या होगा जब मैदान महशर में कोई भी सायादार दरख्त नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई साया नहीं होगा। उस वक्त आप बतलाइए, कोई छतें नहीं होंगी, इसी तरह से प्यास बुझाने के लिए कोई भी चीज मैसर नहीं होगी। तब हम उस गर्मी में गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जब सूरज बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, आज इतनी दूरी पर सूरज है, तब हम सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा कि हमारे हाथ से टकरा जाए, फिर सायादार दरख्त भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है, वहां पर हमें और आपको जमा किया जाएगा। वहां पर हिसाबो किताब होगा। और आज तो 12 घंटे 13 घंटे का पूरा दिन होता है, उसमें सिर्फ चंद घंटे गर्मी के होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, हिसाब देने वाला दिन ये 12-13 घंटे का नहीं होगा, ये घंटा होगा 50,000 साल का एक दिन होगा। और वहां पर इस कदर गर्मी होगी, इस कदर गर्मी होगी कि इंसान, जमीन जो होगी, जमीन तांबे की तरह से तप रही होगी। जिस्म से निकलने वाला पसीना ऐसे ही छूट रहा होगा जिस तरह से पत्थर से पानी छूटता है। मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, इसी तरह से यह भी जान लें कि इंसान के जिस्म से पसीना जो निकलेगा कैसे ही खौल रहा होगा जिस तरह से कढ़ाई में रखा हुआ तेल खौलता है। लोगों की हालत इस तरह से होगी जिस तरह से धूप के दिनों में एक कुत्ता धूप में दौड़ता जा रहा हो, परेशान हो, गर्मी की शिद्दत परेशान कर रखी हो, और उसकी जुबान उसके मुंह से निकली हुई हो। ये लोगों की हालत होगी। ऐसी हालत में लोग हिसाबो किताब देंगे, अल्लाह तबारक व तआला सबको जमा करेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन वजह क्या है कि उस दिन के हिसाब से हम गाफिल हैं, कयामत के दिन से हम गाफिल हैं, मैदान महशर में जमा होने वाले दिन से हम गाफिल हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने ये समझ रखा है कि शायद वो दिन नहीं आएगा, या हमने ये समझ रखा है कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी 40 साल हमें जीना है, 40 साल के हैं, 60 साल हमें जीना है, 60 साल के हम हैं, अभी 80 साल तक हमें रहना है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। वो लोग बेशक कयामत को दूर समझ रहे हैं और हम उसे बहुत करीब देख रहे हैं। किसने ये देखा है कि जब आपकी उम्र 80 साल होगी तभी आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि जब आप अपने बच्चों की शादी कर देंगे तब आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि अभी आपने हज नहीं किया है, हज कर लेंगे तब आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि अभी आपकी बच्ची की शादी बाकी है, बच्ची की शादी हो जाएगी उसके बाद मौत आएगी? मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी चीज ने गफलत में डाल रखा है कि हमें ये यकीन ही नहीं कि मौत कब आएगी। हम ये
समझते हैं जब हम 80 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर कोई मर्ज आएगा, 2-4 साल हम चारपाई पर पड़े रहेंगे, उसके बाद हमें मौत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि ये लोग क़यामत को, मैदान महशर को, हिसाब के दिन को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब वक्त पूरा हो गया तो उसको मौत आ करके रहेगी, ऐसी हालत में हिसाब होगा। और हिसाब जब होगा, यह भी याद रखिए आप, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, वत्तक़ु यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज की वजाहत कर दी कि इस चक्कर में न रहो कि दुनिया में हम पैसा देकर के आगे हो जाते थे, दुनिया में हम सिफारिश करके आगे हो जाते थे, दुनिया में हम अपना कुंबा और कबीला बतला करके आगे हो जाते थे, दुनिया में हम अपनी डिग्री बतला करके आगे हो जाते थे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वत्तक़ु यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा, उस मैदान में कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन, और ना ही किसी की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही मुआवजा दे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। वला हुम युनसरून, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ना ही उनकी किसी तरफ से मदद की जाएगी, कोई मदद नहीं करेगा। बेटा परेशान है, बाप उसकी मदद नहीं करेगा, बाप परेशान है, बेटा उसकी मदद नहीं करेगा, बीवी परेशान है, शौहर मदद नहीं करेगा, शौहर परेशान है, बीवी मदद नहीं करेगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मैं बतलाना यह चाहता हूं कि हिसाब का दिन होगा कैसे। हिसाब तो हमें देना ही है, लेकिन हालत क्या होगी, उस वक्त का मंजर क्या होगा, किस तरह से लोग होंगे। इतनी खवातीन अंदर बैठी हुई हैं, आप यहां पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। आप ये बतलाइए, एक तरफ आपका एक बैग है जो लाखों रियाल का बैग भरा हुआ इस खेमे में रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपके गोद में आपका छोटा सा बच्चा है। ला क़द्दर अल्लाह, अगर कोई ऐसी हालत आ जाती है कि भागना पड़ता है, आप क्या देखेंगे? क्या आप ये देखेंगे कि हमारा 1 लाख रियाल का बैग इस खेमे पे पड़ा हुआ है, हम उसको लेकर के निकलें? या आप ये देखेंगे कि अपने बच्चे को हम बचाएं, अपनी जान को बचाएं, अपने बच्चे की जान को बचाएं? आप इन खवातीन जो घर अंदर बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बच्चे को 1 सेकंड के लिए अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, कान खोल करके ये हम सुन ले कि वो वक्त ऐसा होगा, हिसाब का वक्त ऐसा हिसाब होगा, मैदानी महशर ऐसा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में उसकी भी वजाहत कर दी कि हम गलत फहमी के शिकार ना रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो दिन तुम देखोगे कि उस वक्त दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। आज 1 लाख रियाल का बैग पड़ा हुआ है, जान का खतरा हुआ, चाहे आप हो या आपकी खवातीन हो, बच्चे को पहले उठाएंगी। 1 लाख रियाल का, 1 करोड़ रियाल का वो बैग नहीं उठाएंगी। क्यों? इसलिए कि बच्चे की मोहब्बत वो जानता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा दिया है, या अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा दे करके वापस ले लिया है, उसको बच्चे की मोहब्बत मालूम है। जिसको अल्लाह तआला ने बच्चा नहीं दिया है उसको नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे की मोहब्बत में लाखों रियाल का बैग छोड़ देता है, छोड़ देती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के जान बचा करके निकल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, उस दिन तुम देखोगे कि वो औरत जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उस वक्त का आलम इतना खतरनाक होगा, इतना दहशतनाक होगा, इतना वहशतनाक होगा कि दूध पीते हुए बच्चे को वो भूल जाएगी, जो दुनिया में कभी नहीं हो सकता था। लेकिन उस दिन वो दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वतदउ कुल्लु ज़ाति
حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو وضع کر دے گی، چھوڑ دے گی، یعنی یہ دہشت کا عالم ہوگا، یہ خوف کا عالم ہوگا، اس طرح سے وہ منظر ہوگا۔ لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ لوگ مست ہیں، یہ لوگ ایک دم پریشان حال ہیں، یہ نشے کی حالت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے جب ایسا دہشت ناک ماحول ہے، اتنا خطرناک ماحول ہے، جو دودھ پلاتی عورت تھی وہ اپنے بچے کو چھوڑ رہی ہے، جن کے پاس حمل تھا یعنی حاملہ اپنے حمل کو وضع کر رہی ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ بدمست نظر آ رہے ہیں، ایسا لگے گا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اس دن ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہے، کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ اس حساب کے دن کی کامیابی کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کی تیاری کے لیے، 60 سالہ زندگی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، بیوی کے لیے ہم نے بہت کچھ تیار کیا ہے، لیکن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن ہوگا کون سا؟ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو بھی قرآن مقدس میں کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حساب کے دن کو معمولی سمجھ رہے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں جس طرح سے ہم کوشش کر کے دائیں سے بائیں سے لیفٹ رائٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم وہاں پر آگے بڑھ جائیں گے۔ ارے وہاں پر تم نہ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا، نہ تمہیں کوئی پوچھے گا، نہ تمہارا کوئی رشوت لے گا، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں چلے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور وہ امہ وابیہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وہ ماں جس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، اس ماں کو چھوڑ دے گا۔ وہ باپ جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، اس باپ کی بھی نہیں سنے گا، وہاں سے بھاگے گا۔ یہی نہیں، وہ صاحبتہ وبنیہ، وہ بیوی جس کی وجہ سے اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائیوں سے مخالفت کر لیتا ہے، کنبہ قبیلہ سے مخالفت کر لیتا ہے، گاؤں والوں سے مخالفت کر لیتا ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا کہ وہ شخص اس وقت اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنے اس بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا جس کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کا بیگ چھوڑ دیا تھا، اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، اپنا ملک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، ایک دوسرے سے سب کوئی بیزار نظر آئے گا۔ محترم حضرات و خواتین، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ یا ہم صرف 60 سالہ زندگی کے لیے، 70 سالہ زندگی کے لیے، 80 سالہ زندگی کے لیے وہی ہم آپ انتظام کر رہے ہیں؟ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی بھائی سے بھاگ رہا ہے، کوئی باپ سے بھاگ رہا ہے، کوئی ماں سے بھاگ رہا ہے، کوئی بیوی سے بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹے سے بھاگ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھاگیں گے لوگ؟ اس کی مفسرین نے 3 وجہیں بیان کی ہیں کہ کسی میں کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس سے کسی کا حق مطالبہ نہ کر دے، کوئی شخص کسی حق کا مطالبہ نہ کر دے، اس لیے وہ بھاگ رہا ہوگا، چہرہ نہیں دکھائے گا، یا اسی طرح سے کوئی اس کی پریشانی اور بے چینی کو نہ دیکھ لے۔ جس طرح سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی لڑکا امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو اپنے کلاس والوں کے سامنے وہ نہیں آتا ہے، منہ چراتا پھرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر چونکہ وہ ناکام ہو چکا ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوا ہوگا تو وہ منہ چرا رہا ہوگا، یا اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا جب ہمیں یہاں پر کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ہمارے کام ہی نہیں آئے گا تو ان سے ملنے سے فائدہ کیا ہے، ان کی طرف التفات کرنے سے فائدہ کیا ہے، ان کی طرف رجوع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لہذا
हर शख्स एक दूसरे से भाग रहा होगा। और मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, कुछ लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका भरोसा किनके ऊपर होता है? पीरों के ऊपर होता है, फकीरों के ऊपर होता है, बाबाओं के ऊपर होता है। वो ये समझते हैं कि ये पीर और ये बाबा हमें मैदान महशर में भी आगे बढ़ा देंगे। जिस तरह से दुनिया में कह कह करके सब्ज बाग दिखा करके उनको आगे बढ़ा रहे थे, वो ये समझेंगे कि ये मुझको आगे बढ़ा देंगे। पीर साहब ने जो कह दिया वही सही है। पीर साहब ने कह दिया जन्नत के 7 दरवाजे तुम्हारा इंतजार, 8 दरवाजे तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो कहेंगे ठीक है, पीर साहब का हमें दामन पकड़ के रखना है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, उस वक्त क्या होगा जब पीर साहब ठेंगा दिखाएंगे, जब बाबा साहब ठेंगा दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को अपने कुरान में नाजिल कर दिया है और बतला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब ये पीर साहब जो होंगे, कौन से पीर साहब? वो पीर साहब जिसके लिए मुरीद सब कुछ करने के लिए तैयार था, जो पीर साहब कभी उसकी माल में बरकत दे देते थे, जो पीर साहब कभी उसकी मियां बीवी में मोहब्बत पैदा कर देते थे, और जो पीर साहब कभी उसको औलाद दे देते थे, वो पीर साहब होंगे। और कमाल तो ये है कि कितनी खवातीन ऐसी होती हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद से नवाज दिया तो वो ये समझने लगी कि पीर साहब के पास हम गए, हमारे हस्बैंड गए और पीर साहब ने हमें औलाद से नवाज दिया। अब उसी में बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होंगी कि जिनकी मुराद पूरी नहीं होती। मुराद तो किसी की भी पूरी नहीं होती, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला देने वाला होता है, वो घड़ी मुतय्यन होती है। उसी बीच में ये पीर से गुजर जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का एक वक्त मुतय्यन होता है। अब वो शोर हो गया, चारों तरफ शोर हो गया कि फला के 8 साल बच्चा नहीं हुआ था, फला पीर के पास चादर चढ़ाया और ये किया और वो किया, उसको बच्चा हो गया। अब दुनिया की सारी औरतें वहीं पर जाने लगी और जब नहीं मिल रहा है तो क्या कहती हैं? वो खवातीन कहती हैं तेरे दर पे ख्वाजा मैं मर जाऊंगी, तेरे दर पे ख्वाजा मैं मर जाऊंगी, मिलेगा जो बेटा तो घर जाऊंगी, खाली हाथ लेके मैं किधर जाऊंगी, सहेलियों में जाके मैं शर्माऊंगी। ये वो खवातीन होती हैं जो पीरों पर जो अपना नाम रुकैया रखती हैं, कुलसूम रखती हैं, जो अपना नाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान रखता है, लेकिन इसके बावजूद पीरों पर अकीदा रखता है, पीरों पर उसका ईमान होता है कि ये हमें औलाद दे देगा। याद रखें कयामत का दिन होगा जब वो ठेंगा दिखाएगा कि जाओ आज मैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को नक्शा खींचा और फरमाया वो पीर लोग जिसके पीछे लोग चल रहे थे, जब वो पीर उससे बरात का इजहार करेगा और कहेगा कि जाओ अब तुम अपना काम करो, मैं तो खुद फंसा हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, इसलिए ठेंगा दिखा करके और दूर कर देगा। याद रखिएगा जब वो अपनी आंखों से सारा अजाब देख लेगा, उसको पहले भी उसे पाखंडी को पहले भी पता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त अपने मुरीद को अंधेरे में रख रखा था। अंधेरे में रहने की वजह से उसका मुरीद उसके पीछे चल रहा था, सारी चीजें कर रहा था, उसका पैर धुल करके पी रहा था, उसका घर बनवा रहा था, उसकी खिदमत कर रहा था, उसका पैर दबा रहा था। लेकिन जब अल्लाह ताला के अजाब को देख लेंगे तो वहां से सारे रिश्ते नाते वो तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। तो जानते हैं यही मुरीद साहब, यही मुरीदा साहिबा क्या कहेंगी? अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी नक्शा खींचा है। जब ये देखेंगे कि उसने ठेंगा दिखा दिया, बरात का इजहार कर दिया, धुतकार दिया, पीछे से हटा दिया, तो ये कहेगा, ये मुरीद कहेगा, ये मुरीद नहीं कहेगी। क्या कहेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। ऐ काश मुझे दुनिया में दोबारा लौटाया जा सकता, ऐ काश मैं दुनिया में दोबारा जाता। ये मुरीद कहेगा जो
किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पीर के अलावा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये मुरीद नहीं कहेगी जो पीर की बातों के अलावा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, ये कहेगी ऐ काश हमें दुनिया में दोबारा लौटाया जा सकता तो हम जिस तरह से आज इन्होंने मुझे ठेंगा दिखाया है, दोबारा अगर मुझे जिंदा किया जाता, दुनिया में लौटाया जाता, जिस तरह से आज इन्होंने बरात का इजहार किया है, जिस तरह से पीछे से हटाया है, मैं भी इनको ठेंगा दिखाता, मैं भी इनको ठेंगा दिखाती, मैं भी बरात का इजहार करता, मैं भी बरात का इजहार करती। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे सकता था, डायरेक्ट अजाब दे सकता था, कोई सवाल करने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त दिखाएगा कि ये अमल तुम करके आए थे जिसकी वजह से तुम्हें यह अजाब दिया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है मोहतरम हजरात व ख्वातीन कि उस दिन हिसाब व किताब के लिए हमने क्या तैयारी किया है, क्या हम उस दिन कामयाब हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते हैं तो याद रखिएगा कि जिस तरह से हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया है उसको मौत आएगी, इसी तरह से हमारा यह अकीदा भी होना चाहिए और हर मुसलमान यह अकीदा रखता है कि दोबारा जिंदा होना है और जिंदा होने के बाद हिसाब व किताब देना है। मौत से और हिसाब व किताब से कोई राह फरार नहीं है। हर एक को मौत के घाट उतरना है और हर एक को चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसको हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से बचने के लिए तुम अमेरिका तक चले जाते हो इलाज कराने के लिए, दुनिया के गोशे गोशे में चले जाते हो इलाज कराने के लिए, याद रखो कहीं भी तुम चले जाओ, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो ये मौत तुमको आकर के रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, और तुम उसके सामने हाजिर किए जाओगे, वो रब्बे कायनात मालिक अर्ज़ समा, उसके सामने हाजिर किए जाओगे जो तुम्हारी जाहिरी चीजों को भी जानता है, तुम्हारी पोशीदा चीजों को भी जानता है, जिसको तुमने इनफरादी तौर पर किया था उसको भी जानता है, इज्तिमाई तौर पर किया था उसको भी जानता है, दिन के उजाले में किया था उसको भी जानता है, रात के अंधेरे में किया था उसको भी जानता है, सारी चीजों को जानता ही नहीं है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, हिसाब व किताब के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मेमोरी को, इस मेमोरी को ताजा कर देगा, सारी चीजों को। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर अगर नेकी किया है वो भी अल्लाह तबारक व तआला सामने लाएगा, जर्रा बराबर अगर बुराई किया है वो भी अल्लाह तबारक व तआला सामने लाएगा, कोई चीज उससे छुपी नहीं रह जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम हजरात व ख्वातीन, मौत से किसी के लिए भागना और बचना मुमकिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसको मरना ही मरना है। और हर शख्स जिसको मौत का सामना करना है, मौत का सामने होना ही पड़ेगा, उसको उस दिन के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। मौत हर एक को आकर रहेगी और जब वो आ जाएगी तो किसी को ये मौका नहीं देती है, किसी को ये मौका नहीं देती कि अभी आप सफर में हैं, घर पहुंच जाएं, तब रूह का फरिश्ता कहेगा अच्छा आप घर पहुंच गए, सबसे मुलाकात कर लिया, अब रूह कब्ज करने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सजदे में एक शख्स है और मौत का फरिश्ता ये कहे कोई बात नहीं, तो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अभी मैं तेरे रूह नहीं कब्ज करूंगा, तो अपनी नमाज पूरी कर ले। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी बेटी की शादी बाकी है और वो ये कहे तेरा कोई नहीं है, तो अपनी बेटी की शादी कर ले। ऐसा भी नहीं है कि तेरा बाप बहुत ज़ईफ है, तो अपने बाप को मौत के घाट जब उतर जाएगा उसके बाद तेरी मौत हम निकालेंगे। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है उस वक्त को कोई टाल नहीं सकता। और इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो कुल्ले उम्मतिन अजल, हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए, हर शख्स के लिए एक वक्त मुकर्रर है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, कोई भी हो, हर शख्स का एक वक्त मुतय्यन है। वो वक्त जब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फइज़ा जाअ अजलुहुम
ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत की घड़ी आ गई तो याद रखिए एक सेकंड के लिए ना वो घड़ी आगे हो सकती है ना वो घड़ी पीछे हो सकती है। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, सोचना हमें और आपको यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी हमें अता की है। अभी लॉकडाउन का जमाना आया था, कितने लोग हमारे अकरवा, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले इस दुनिया से चले गए। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान नहीं है कि उसने हमें ये फुर्सत दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया है। किस लिए मौका दिया है? दुनिया बनाने के लिए नहीं, उस दुनिया को बनाने के लिए मौका दिया है जो दुनिया कभी खत्म होने वाली नहीं। 1000 साल के बाद, लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद कभी नहीं खत्म हुई। उस दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मौका इनायत फरमाया है, लिहाजा हम इसको गनीमत समझें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इग़तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन, 5 नेमतों से पहले, 5 नेमतों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। 5 नेमतों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, ये सोच लीजिए कि अगर हम इन 5 चीजों पर गौर कर लें तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़तनिम खम्सन क़ब्ला खम्सिन, 5 नेमतों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझो इसको। पहली चीज, जवानी को बुढ़ापे से पहले। ये जवानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, इस जवानी को बुढ़ापे से पहले, अगर आज आप बूढ़े हो गए होते, इस लायक नहीं होते, आज आए हैं, ऐसी मजलिस में आए हैं जहां अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो रही है, अल्लाह ताला के फरिश्ते घेर रखे हैं, ऐसी मजलिस में पहुंचे हुए हैं, रूहानी मजलिस है, रूहानी मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौका दिया है, तो हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये मौका दिया है, जवानी अता की है, तो हमें और आपको इससे फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, आज अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे रखी है, अगर बीमारी आ गई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अमीरी को गरीबी से पहले गनीमत समझो। अमीर वही शख्स नहीं होता है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, अमीर वही शख्स नहीं होता है जिसके पास कोठियां हों, अमीर वही नहीं होता है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हों। अमीर हर वो शख्स है जो शाम को रिज़्क़ हलाल खाता है और सो जाता है और सुबह फिर अल्लाह तबारक व तआला इसका इंतजाम कर देता है, लिहाजा उसको भी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसरूफियत से पहले फरागत को, यानी जब इंसान फारिग होता है, किसी चीज में बिजी नहीं है, तो उस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मौका दिया है। और इसी तरह से जिंदगी को मौत से पहले, मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी जो अल्लाह ताला ने अता की है, इस जिंदगी को हम गनीमत समझें, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए। आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म कर लेता हूं। हमें और आपको सोचना यही है कि हमने हिसाब के दिन की कामयाबी के लिए क्या तैयारी की है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, यकीनन हमें सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ मोमिनो सोच लो, गौर कर लो, पूरे रजिस्टर अपना देख लो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स ये सोच ले कि कल के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की है, कल के लिए उसने क्या भेजा है। हिसाब के दिन हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, हमने ये तैयारी की है या नहीं की है। अगर हमने कल के दिन का ख्याल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हम आज ही से ये तहैया कर लें, ये इरादा कर लें कि हमें इस बात पर गौर करना है कि कल के लिए हमने क्या तैयारी की है, क़यामत के लिए हमने क्या तैयारी की है, हिसाब के दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है। दुनिया में अपने बच्चों के लिए तो हमने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन हमने अपने आप के लिए क्या तैयार किया है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआगो हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबको दुनिया की जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को तरजीह देने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे नामे आमाल में इलाहुल आलमीन नेकियां ही नेकी अला, इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम भाई बहन माँ बाप जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा। और वो तमाम लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, दीन इस्लाम पर रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पर हो और हमारी जुबान पर
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.